Uh, Good evening, everybody. And today we have gathered here to discuss everything that we need to know about financial planning. This is part of our initiative to educate retail investors in order to plan better and in order to invest better in the financial markets. Right. Today we have got um, Preeti ma'am with us, Mrs. Preeti Zende. She is a financial planner. She is a fee only financial planner and puts out some beautiful tweets and beautiful quotes on the over Twitter and is a fee only financial planner. So that's a very brief introduction about her and how we will schedule up this space is that for the first 25 to 30 minutes we will discuss about financial planning, and to make the space more interactive we will try to answer a lot of questions that all retail investors may have about financial planning. So that's how we are going to schedule up this space. So without wasting much time, Preeti ma'am, let's go straight to the topic. And can you first please explain to us, uh, explain to us why is it very very important to create a financial plan? Because मेरे एक्सपीरियंस में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का है वो स्किप करके सीधा ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में घुस जाते हैं. तो आप एक्सप्लेन करेंगे हमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू undergo this process. Thanks, Aditya, for inviting me on this show. Okay, so guys, yeah, definitely. Aditya ji ने जैसे कहा कि financial planning is very important. Okay, so kindly first understand what do you mean by financial planning. So financial planning refers to the process of streamlining the income, expenses, assets, liabilities of the household to take care of both current and future need for funds. Okay, so financial planning का first step क्या होता है कि सबसे पहले kindly understand that what would be your future needs. Okay, आपको कब उसके पैसे चाहिए और आपको क्या क्या गोल्स मैनेज करने हैं. पहले ये चीजों को हमें एक तरीके से पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहला होमवर्क कर लो. फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना, उसके क्या क्या स्टेप्स है उसको समझना बहुत जरूरी है. जैसे आदित्य जी ने कहा कि हम बहुत पहले जम कर लेते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स which are been included in this financial planning. So financial planning actually enables better management of the personal financial situation of a household. It works primarily through the identification of key goals, putting in place an action plan to realign the finances to meet those goals. So identification of financial goal is a crucial part in financial planning. Once you do so, then the whole overall process starts, and then you can think of adding different financial instrument which will be suitable for this. Okay, so this is what I should tell tell the listener to first understand that you have to take the financial planning process step by step, and then go and select any financial instrument which are suitable to your goals and the time horizon for that particular goal. थैंक यू प्रीति मैम, ब्यूटीफुली समराइज किया आपने कि इनकम एक्सपेंस का मैनेजमेंट आपके लाइफ भर करना है तो वो फाइनेंशियल प्लान करता है. सो नाउ इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि की फीचर्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लान के, एंड इफ आई गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हाट आर द फर्स्ट की स्टेप्स दैट आई शुड लुक फॉर जब फाइनेंशियल प्लान डिजाइन किया जाता है तो. Definitely. So kindly understand, as I said, कि there are multiple steps before you decide that how or where to actually start investing. Okay, so the steps I will just give you a brief about that. Okay, so the first step will be list out all your income sources. You may think that this is such a primary or such a basic thing I'm talking about, but most of the times when we actually forget to start with the basics, तो वो कहते हैं ना, foundation अगर आपका पक्का नहीं हो
तो उस पे बनी हुई बिल्डिंग जो होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं बनती. So kindly you have to actually go step by step to identify or to start a process of this financial planning. So first one is definitely list out all your income sources, then pen down all your monthly expenses, right? So when you know that what is your income and how your monthly all yearly expenses are going, then you will understand that how is your cash flow management. Okay, third thing is list down all your assets and liabilities. So this will give you actually an idea that what is your current net worth, right? So we'll understand that whether your assets are more, and that's why because of that you are into plus or positive net worth, or whether your liabilities are more and because of that your net worth is actually in negative, right? Next step is identify your financial goals. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि this is very important that you should know that why you want to invest, why you want to start investing. If you really don't know the purpose, then your investment or whatever thing you are doing will be a directionless. उसके बाद list down all your existing life insurance and health insurance policies. So apart from investment, the second main pillar of financial planning is that you have to have proper insurances done actually before starting your investment. Then the next step is risk profiling, right? So now you have to actually understand what is your risk profiling based on all the inputs which has been listed over here, that what is your current net worth, how much you are earning, how much you are able to save, then how much is the net worth currently, what are your future needs, okay, and what is your investment experience so far. So on that basis you have to select, or you have to actually categorize yourself into different type of risk profiling numbers, or I may say a category. And then you have to start preparing the cash flow statement, which will be helpful for you once you know the income and expenditure statement. Then, as I said, net worth statement will be the next step. Then we will be preparing the financial asset allocation chart. On that basis, we will first understand that what would be the asset allocation for each and every goal, which has been segregated as short term, mid term, and long term. Okay, and on that basis, then we are going to select the different types of financial product which has been suitable for all these three types of financial goals. Brilliant, brilliant, Preeti ma'am. You have explained it very, very simply and very, very crisply, so that everybody can understand. Thank you. So now, I wanted to start off with one by one with all of the elements that you have said. Just wanted you to explain to us why is it important to get a health insurance, and as well as on the life insurance side of it, which one we should buy, and who needs a life insurance. Since this forms a very crucial part of financial planning, so if you can guide us, it would be great. Yes, definitely. Actually, what happens, I won't say it's a kind of mentality of every household, but most of the times we find that people actually wants to earn a return from every single penny, right? उनको लगता है कि जो भी पैसे मेरे पास है उसमें से सब में से मुझे रिटर्न आ जाए और मैं कुछ ना कुछ कमाऊं. And because of that, important जो aspects होते हैं financial planning के, we actually keep on just ignoring it, और जैसे कहते हैं पोस्टपोनिंग इट टू मैनेज, राइट? सो उसमें से दो तीन चीजें जो होती है वो है इंश्योरेंस एंड सेकंड इज इमरजेंसी प्लानिंग, राइट? तो उसमें से ये दोनों चीजों को हम निग्लेक्ट करके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे जंप कर देते हैं. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ये दोनों चीजें फुल प्रूफ होना बहुत जरूरी है. सो द इंश्योरेंस विच एज यू सेड, राइट, सो वी हैव टू हैव 3 or 4 types of insurances done. So primarily the number one insurance is definitely a life insurance, right? So first of all, kindly understand life insurance is needed only for those who are actually actively earning, right? They are earning and they have a financial dependent person on them, right? If a person or if he or she is not earning, and if he or she is not having any financial dependent person
on him or her, then the life insurance is not needed, right? Secondly, if the net worth of that person, it means that person has achieved certain amount of net worth which can be equivalent to insurance, then he can take a call that after that he or she doesn't need life insurance. So बहुत बार हमसे गलती ऐसी हो जाती है कि हम 75-80 ईयर्स तक लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, एंड जब समझो हम 58 या 60 में रिटायर हो गए, तो यू आर अननेसेसरी पेइंग द प्रीमियम, okay, for rest of the life. Kindly understand the basic principle of insurance is to make sure that it is replacing your current or future income. So when you stop earning, you should know your life insurance need actually stops at that time only, right? So this is the important thing you should understand, that if you are working, then only take the life insurance, and you should have a term for that life insurance till you are planning to work. Okay. Secondly, don't go with any other type of insurances other than term insurance. So only the term insurance is the insurance which you can take up as a life insurance. Apart from that, all other insurances are actually a combination of insurance and investment, which is actually not at all needed, and many times it has been missold in the market, right? So as a investor, you should have that clarity that I will only have a term insurance, right, when I'm thinking of life insurance. After that, life insurance, the health insurance is equally important, right? So we have experienced the need of health insurance ड्यू टू कोविड. इसका बहुत बड़ा मतलब जिनके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था या जिनके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उनको बहुत ही बड़ा इसका झटका लगा. एंड इफ इट मीन्स वी मे थिंक दैट व्हेन आई एम वेरी फिट, आई एम वेरी यंग, आई रियली डोंट नीड हेल्थ इंश्योरेंस, एंड वॉट एवर प्रीमियम आई एम पेइंग टूवर्ड्स इट जस्ट एक्सपेंस, राइट? बट दिस ये नोशन जो है वो पूरा हमारा हम कहते हैं कि एकदम हिल गया जब पूरा का पूरा परिवार कभी अनफॉर्चुनेटली अगर हॉस्पिटलाइज हुआ तो, राइट? सो वन शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर फैमिली. Kindly understand, life insurance is only for those who are earning, but health insurance for each and every person of your family. So you should have adequate health insurance. So if the premium is the concern for you, then you can have a combination of base plan and as well as combination of super top up plan. Go with only super top up plan, don't go with a top up plan. Okay, so there is a difference between both of this concept, and definitely one should have accident policy as a standalone policy. If you take it, that would be better. It also covers disability cover, right? So these three important insurances one should have, right, in their kitty before starting investments. Thank you, ma'am. That was a brilliant. That was some brilliant insight into insurances. Then let me come on to the second part of it. So goals. अगर हमें गोल्स डिसाइड करने हैं तो बहुत बारी ऐसे मैंने भी देखे लोगों को जिनको समझ में ही नहीं आता कि उनके गोल्स क्या है. तो ब्रॉडली आप हमें अगर एग्जांपल दे सकते हो 3-4-5 गोल्स के ब्रॉडली जो नॉर्मली हर एक इन्वेस्टर के होते हैं. सबके अपने अपने गोल्स होते हैं. पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, बट ब्रॉडली हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं और कैसे हमें सोचना चाहिए उसके बारे में, थोड़ा वो आप बताएंगे? जी, डेफिनेटली आपने एकदम सच कहा कि बहुत बार जब भी हम इनिशियल कॉल लेते हैं क्लाइंट्स को, तो वो कहते हैं कि मेरे तो ऐसे कुछ गोल नहीं है, जस्ट वेल्थ क्रिएशन इज माय गोल, राइट? सो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन सबका गोल होता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन को अगर आप टाइम फ्रेम में डालें तो बात अलग होती है. वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, ऐसे नहीं कि आज मैंने पैसे डाला और कल वेल्थ क्रिएट हो गई, राइट? सो अगर वेल्थ क्रिएशन को भी छोड़ के अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ के गोल्स क्या है. अल्टीमेटली गोल्स क्या होते हैं? गोल्स वो होता है कि जो हमारे एस्पिरेशंस है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें एक जीवन में एक अलग अलग पायदान पे उसको हमें मीट करना होता है, राइट? सो उसी को सिंप्लीफाइड तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी लाइफ में हमें अचीव करना है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट और एज अ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अवर फैमिली, राइट, उसको मीट करना मतलब आपके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल गोल्स से, राइट? सी, पैसे हर चीज के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन जीवन के कौन से पड़ाव पे कितने पैसे चाहिए, ये अगर आपको प्रॉपरली पता हो तो उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सो मुझे कोई गोल, मेरे जीवन में कुछ गोल नहीं है, या आई डोंट हैव एनी अदर गोल देन wealth creation is not a proper way to address your financial planning or address your लाइफ के इन्वेस्टमेंट को, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या फैमिली जो क्लाइंट या जो इन्वेस्टर है 30s में, तो उनका एक नॉर्मली क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल गोल? सो डेफिनेटली द नंबर वन फाइनेंशियल गोल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, राइट, इट शुड बी द रिटायरमेंट प्लानिंग, right? So that is the most important financial goal in everyone's life, those who are earning, right? So retirement goal. Second important goal जो होता है वो definitely kids education. Then third होता है owning a house, right? So definitely कब ओन करना है हाउस को, ये डिफर करता है। फाइनेंशियल प्लानर आपको बता सकता है कि व्हेन इज द feasibility for that goal, but this can be a goal, right? Then definitely it comes किड्स मैरिजेस, राइट? इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा गोल है बहुत से पेरेंट्स के लिए, तो दैट कैन बी योर गोल। देन डेफिनेटली ओनिंग अ कार और अपग्रेडिंग अ कार, देन डेफिनेटली गोइंग फॉर अ वेकेशन। देन वेकेशन में यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेकेशन, दैट डोमेस्टिक वेकेशन, yearly vacation, exotic vacation, right? So for all these things you can plan, and definitely renovation, then buying some expensive items. So there are a number of things, right? But basically 5 important goal is retirement planning, kids education, kids marriage, owning a house, and vacation or buying a car. Yes, बिल्कुल perfectly summarize कर दिया मैम आपने. Then if we move on to the next thing that is there covered under the financial plan, is अगर हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करनी हो तो ब्रॉडली रिस्क प्रोफाइलिंग होती क्या है? अगर हम एक नॉर्मल बंदे को समझाएं कि व्हाट इज रिस्क प्रोफाइलिंग, तो वो क्या होता है? और 3 लोगों की रिस्क प्रोफाइलिंग मैं पूछता हूँ, ऑफ कोर्स जैसे कि आप भी बोलती हो और मैं भी ये समझाता हूँ लोगों के, पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होती है तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता. बट सपोज एक यंग 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 पर्सन है तो उसका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे रहेगा, एक मिडिल एज है तो कैसे रहेगा, और एक ओल्ड एज है तो कैसे रहेगा, राइट? ऑफ कोर्स ये तो कोई सबके लिए अलग अलग रिस्क प्रोफाइल रहेगा, पर ब्रॉडली जनरल रूल क्या होता है अगर आप ये समझाएंगे तो बेटर. Yes, sure. See, investment for many of us is just following any random advice received by a friend, neighbor, or colleague, or going by market trends. We just want to have all top rated or star mutual fund in our kitty, which is shown on any famous website. We never give any thought about our risk taking ability in the short term as well as long term. And that's why most of the times we are disappointed with our portfolio performance. And this is the most crucial thing, right? और ये हम भूल ही जाते हैं. So self risk assessment is very very important step in financial planning. So before starting investment, this step is very important for you to take, right? So how can one carry out the self risk assessment? So there is a formal way to do so. One can go with a questionnaire prepared by an expert, or you can also find an online questionnaire, right? So ये आप खुद भी कर सकते हो. You need to answer those questions, but kindly answers very honestly, right? मतलब जो सच में आपको लगता है या आप खुद को उस तरीके से उस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं जो पहला आपके मन में आंसर आता है, सो काइंडली उसको उसी तरीके से आंसर कीजिए. देन रिस्पॉन्सेस ऑफ इन्वेस्टेड आर कन्वर्टेड इनटू अ स्कोर दैट मे क्लासिफाई देम इनटू कैटेगरीज दैट कैरेक्टराइज विद देयर रिस्क प्रेफरेंसेस, राइट? जो एग्जांपल्स आप में दिए हैं उसके पहले मैं जस्ट एक ब्रॉड 3 कैटेगरी बताना चाहूंगी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो कहते हैं उसके. तो सबसे पहले है एग्रेसिव इन्वेस्टर, देन मॉडरेट इन्वेस्टर, एंड देन डिफेंसिव इन्वेस्टर. तो जो आपने कहा वो जो 3 जो आपने बताए वो ये तीनों कैटेगरी में फिट होते हैं. जितने आप यंग हो, राइट, जितने ज्यादा साल है आपके पास उस गोल को अचीव करने के लिए, उतना आपका प्रोफाइलिंग एग्रेसिव होता है. यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि
रिस्क प्रोफाइलिंग एक्चुअली ब्रॉड वे पे हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सोचा जाता है. ओके, सो डोंट कंसीडर दैट इफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसके लिए यू कैन थिंक ऑफ बीइंग एग्रेसिव, राइट. बट इफ योर गोल्स, देर आर 2 or 3 goals which are of a short term, right. So buying a car in 2 years of time, at that time if you are putting yourself in aggressive mode, तो ये पूरा गलत है, right. Because the selection of product or risk taking ability actually mainly depends upon the term of that goal, right. So it really doesn't mean or doesn't related whether I am a young or whether I am in middle age or whether I am old, right. Because my goal is just 2 years away, so I can't be an aggressive investor and invest in riskier asset class for that particular goal. So kindly understand, when we are talking about risk taking ability or risk assessment, mostly it is been related to long term financial goals. So if a young person is starting for his retirement planning, then definitely he can be aggressive. But does it mean that he or she should be 100% in equity? So in my actually some, if you ask me, then I'll say never. Okay, because see, kindly understand that investment is a long term phenomena, right. अगर समझो मैं 100% इक्विटी में हूं, मैं कितना भी कहूं कि मैं बहुत एग्रेसिव हूं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव से अगर आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से वो कहते हैं ना कि 100% इक्विटी में जाने के लिए नहीं है, और कभी भी जाना भी नहीं चाहिए. बिकॉज एक काम आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है, तो ऐसा एसेट एलोकेशन रखना बहुत जरूरी है. सो इवन इफ आई हैव 30 years, सो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट कि कुछ पैसे मेरे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के टाइम पे भी डेट एसेट क्लास में हो, राइट. सो लॉन्ग टर्म के लिए ईपीएफ पीपीएफ should be in your kitty, right, if you are planning for retirement, and then you can go with this thing. So aggressive का मतलब 100% equity नहीं है. Okay, moderate का मतलब definitely can be 60% in equity or 50% in equity based on the age of that person. And even if you are a say close to retirement, right, or even if you are retired, a person should have some sort of exposure in equity, right. Because longevity हमारी बढ़ी हुई है, and inflation hedge return अगर आपको चाहिए, तो minimum आपका 20% इक्विटी में होना जरूरी है, right. So this way this, as you said, that it's very personalized thing. So allocation या category जो होती है वो हर बार अलग होती है, but this way you can say that if you are young, you can be aggressive. If you are middle age, you can be moderate, and if you are close to retirement or retired, then you be in the defensive category. बिल्कुल brilliant, ma'am. It was a very deep justification that you gave for risk profiling. So then let me come on to one thing that you had said about emergency, about planning for emergencies and emergency corpus. वो क्या होता है और वो कैसे हम कर सकते हैं? Emergency जी. corpus क्यों क्यों डेवलप करना चाहिए? बिकॉज अगर हमारे पास इंश्योरेंसेज हैं तो इमरजेंसी कॉर्पस की क्या जरूरत है? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे. जी, देखिए इमरजेंसी मतलब सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती. बहुत बार हम सोचते हैं कि इमरजेंसी क्या होगा, कि कुछ हो गया तो इमरजेंसी के लिए मेडिकल का बहुत बड़ा होता है. इमरजेंसी प्लानिंग मतलब हमारे पास ऐसा एक किटी होना चाहिए जो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए. सो इवन इफ सडनली समझो कोविड की वजह से बहुत बार हमने देखा कि सडनली अचानक से जॉब चला गया, अचानक से सैलरी में रिडक्शन आ गया, अचानक से हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी, अगर अचानक से नॉर्मली समझो मेरी कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, राइट, या अचानक से मुझे किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ी, फ्रेंड या किसको, राइट. तो उस टाइम पे यू हैव टू हैव सम लिक्विड अमाउंट रेडी, राइट. लिक्विड अमाउंट रेडी मतलब दैट अमाउंट इज नॉट बीन लिंक्ड विद एनी ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट. बहुत बार क्या हो जाता है कि हम हमारे पूरे के पूरे पैसे, जैसे मैंने कहा, उस पर पूरा रिटर्न मिले इसलिए सब हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, हर एक गोल के लिए मैप कर देते हैं, राइट.
तो उससे क्या होगा, अगर आपके पास कुछ लिक्विड पैसे नहीं है, कुछ आपने बाजू में नहीं रखे हैं पैसे की, कोई भी अगर आगे जाके इमरजेंसी हो, तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट निकालने पड़े। इंश्योरेंस से जो होता है वो लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है उसके लिए होते हैं, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि समझो मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई, या बैंगलोर में आपने देखा होगा, राइट, अगर फ्लड आया और ये सब प्रॉब्लम हो गया, तो इसका इंश्योरेंस आपको मिलेगा, रिएम्बर्समेंट भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ा, राइट, बहुत बार। तो कार ब्रेक डाउन होना, या अचानक से कुछ पैसे लगना, या मेरी जॉब चली जाना, सैलरी रिडक्शन, तो ऐसे टाइम में आपको सस्टेन करने के लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। और कोविड के वजह से, जैसे हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियल प्लानर कितना भी ज्ञान दे या कितने भी बेसिक चीजें बताए, लेकिन जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, हम इस चीजों का महत्व नहीं समझते। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑल दिस concepts actually been learned by the investor, and they're taking these things very seriously because of the covid situation. So this is the great kind of teacher, I think, कि कोविड सिचुएशन जो हुआ, सो उसमें लोगों को इमरजेंसी फंड का महत्व बहुत समझा, राइट। सो इट विल गिव यू एन कॉन्फिडेंस टू सस्टेन इन एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, एनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे फेस करें। सो नॉर्मली एक थंब रूल है कि यू हैव टू हैव 6 months of your monthly expenses kept aside is in liquid form, right? So liquid doesn't mean that you have to store a cash in your cupboard, right? It doesn't mean that like that. You can have a combination of different financial product. Okay, so normally it should be 1/3 in your saving account, 1/3 in LinkedIn FD, 1/3 in liquid fund. But definitely it depends upon how much the requirement of your emergency fund, right? So if your emergency fund is very small, right, so you can just have first two options, right? If it is bigger, then you may add a kind of arbitrage fund as well, right? But definitely because that would be tax friendly, right? But definitely first three are the one which you can think of as a financial instrument used for this emergency fund. बिल्कुल बढ़िया, very well said, ma'am. Now let's move on to the more interesting bit. जैसे कि आपने कहा कि even if you are young, you should not be invested 100% into equities, and you should diversify across all asset classes. तो अब आते हैं एसेट एलोकेशन के ऊपर। एसेट एलोकेशन क्या होता है और कितने टाइप के एसेट्स अवेलेबल हैं और उनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप समझाओगे तो इट वुड बी ग्रेट। Yeah. So asset allocation is the process of deciding how to divide your investment across several asset categories, right? So वो कौन सी होती है normally? So it's equity, then debt, right? Then cash, then gold, okay, and then real estate. So these are the basic five asset classes we are having, right? So asset allocation means diversifying your portfolio. The construction of the portfolio involves allocating money to various asset classes, and this process is called asset allocation. In simple words, invest your money in different types of investment products to minimize your risk, okay, because that's also very important, that you have to see that you are doing proper risk management before starting your investment. So risk should be calculated one. Risk management doesn't mean that you are negating your risk or you're taking zero risk, right? Because there is no kind of zero risk concept available. Even if you are investing in debt asset class, you are having inflation risk, right? You are having reinvestment risk. So risk will be there, but the risk should be calculated one, right? So the asset allocation depends on your age, risk taking ability, and time horizon for the particular goal. So that's what just मैंने पहले जैसे कहा था कि risk profiling also depends upon for which goal you are investing, what is the time horizon for that goal. उसी तरीके से asset allocation is also depends upon for which goal you are investing, what is the time horizon for that particular goal, right? So if the goal is very short term,
and it's always prudent that you are using a debt instrument for that, so that you are not actually going and taking a risk on your capital, right? And the return expectation from debt product or for that particular investment horizon should be moderate, right? You should not expect कि छोटे अवधि में मुझे एकदम से बड़ा रिटर्न मिल जाए. तो उसी तरीके से एसेट एलोकेशन हमेशा गोल के टाइम होराइजन पे डिपेंड होता है. एंड एसेट एलोकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन to the future income and cash flow of the investor in terms of where he should invest to achieve his or financial goals, right? So asset allocation एक उसके लिए एक famous phrase है कि you should not put all your eggs into one basket, right? So उसी तरीके से है कि आप अपना पैसा जो है थोड़ा थोड़ा अगर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, बिकॉज ईच इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अ साइकिल, राइट? एक साइकिल के तरीके से उनका रिटर्न का ऊपर नीचे होना तय है. तो अगर आपके पास हर तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो लेकिन सूटेबल टू योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट? सभी मेरे किटी में हो ये जरूरी नहीं है. फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो रिटर्न होता है उसको प्रोटेक्शन एक मिलता है एक तरीके से, राइट? एंड यू कैन सस्टेनेबली डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर एक एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट किया है और बहुत लंबे समय तक अगर उसमें से आपको किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो एक डीमोलराइज हो जाते हैं हम, एंड देन वी स्टॉप इन्वेस्टिंग, वी कम आउट ऑफ इट, अननेसेसरी लॉसेस बुक करके बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, राइट? सो ये नहीं होना चाहिए. सो एसेट एलोकेशन शुड ऑलवेज बी लिंक टू योर फाइनेंशियल गोल्स. तो जैसे मैंने कहा अलग अलग जो डिफरेंट एसेट एलोकेशंस के अंडर जो एसेट्स आते हैं, तो इक्विटी में डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए. आई नॉर्मली स्टिक टू ओनली विद दिस टू इंस्ट्रूमेंट. ओके, काइंडली फ्यूचर ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स या बाकी चीज़ों को इंट्राडे ट्रेडिंग वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करने के लिए बिल्कुल नहीं है. Of course, प्रीति मैम, so this is all about long term investments. हम यहाँ पे स्पेकुलेशन वगैरह की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे. बिल्कुल. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगर आप लिंक करेंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आपको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट इक्विटी, बेटर यू शुड टेक अदर रूट फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर योर पेनिट्रेशन इन इक्विटी एसेट क्लास. डेट में आपको पता है कि दो तरीके के डेट होते हैं. टैक्सेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है और सेकंड जो होते हैं वो टैक्स फ्री डेट इंस्ट्रूमेंट है. सो टैक्स फ्री डेट इंस्ट्रूमेंट इज ईपीएफ, पीपीएफ, एसएसवाई, राइट? फिर उसके बाद पार्शली हम कह सकते हैं कि एनपीएस हो गया. और जो टैक्सेबल होते हैं वो है एफडीज, आरडीज, देन पोस्टल स्कीम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे बॉन्ड्स हो गए, फिर उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये टैक्सेबल है. तो इन दोनों का अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन करके आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड का जो है उसके लिए हम बहुत बार फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, बट डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड अगर आपको कंज्यूमेशन के लिए नहीं चाहिए, तो इट्स बेटर दैट यू इन्वेस्ट इन गोल्ड डिजिटली. मीन्स आप जो फिजिकल गोल्ड ना लेके एसजीबी इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल्ड के लिए आप होल्ड कर सकते हो और उसमें आपको टैक्स फ्री इनकम मिलता है, सॉवरिन गारंटी है. सो एसजीबी इज ऑलवेज प्रेफरेबल. शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो यू कैन गो विद गोल्ड ईटीएफ्स, राइट? और यू कैन गो विद गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एज वेल. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? बिकॉज वेरी शॉर्ट टर्म अगर आपका गोल हो तो आप लिंक्डइन एफडीज या शॉर्ट टर्म के जो आरडीज होते हैं उसको सोच सकते हैं. एंड रियल एस्टेट इज डेफिनेटली
I won't actually advise to have a real estate as a investment per se before अगर before planning for your liquid assets, right? उसके बाद अगर आपके पास excess amount है, right, तो फिर आप सोच सकते हो कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो. प्राइमरी हाउस के बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ये उन्हीं को एक्चुअली करना चाहिए, दोज हु आर हैविंग अ गुड कैश फ्लो. अदरवाइज आपका बेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बनाना ज्यादा बेहतर है. ओके मैम, अंडरस्टूड. तो अब मैम लेट्स कम टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. ठीक है, अभी नाउ वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज थ्रू लेट्स से इक्विटी म्यूचुअल फंड आल्सो. अब नाउ यू सी यू हैव ऑलरेडी आल्सो सेड दैट इक्विटीज वोलेटाइल रहते हैं. Equities in the long term create wealth. However, in the short term, they can be very volatile as well. और आज हम सब लोगों ने देखा है markets में that today the market has taken a steep fall as well, right? अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, उनको ये ऊपर नीचे से डर लगता है एंड दे गेट स्कैर्ड कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. सो क्या एडवाइस रहेगी आपकी टू ऑल दोज रिटेल क्लाइंट्स who get worried by the volatility that the equity market throws up on them? Suppose I'm a 30-year-old investor who has got about 50 to 60% allocation to equities, one of my biggest assets, and I'm seeing this kind of volatility. तो क्या करना चाहिए हमें, क्या एडवाइस रहती है आपको ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए? जी, देखिए डर लगना स्वाभाविक है, डर मुझे भी लगता है, राइट. मेरा भी पैसा है, मेरे क्लाइंट के पैसे हैं, तो डर तो स्वाभाविक है लगना. लेकिन डर, जैसे मैंने कहा कि डर मुझे कौन से इंटेंसिटी में लग रहा है वो डिफर करता है जब मैंने फाइनेंशियल प्लान बना के इन्वेस्टमेंट किया है. तो व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन फर्स्ट डूइंग ऑल स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट और इवन बिफोर सिलेक्टिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट. काइंडली अंडरस्टैंड, रैंडम इन्वेस्टमेंट एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में ये बहुत बड़ा फर्क है कि आगे चल के आपको ये सब चीजें जो हम वोलेटिलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं इन अवर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सडनली जो रेगुलर रेगुलेशन चेंज होते हैं, सेबी से, गवर्नमेंट से, टैक्स लॉ चेंज होते हैं, तो ये सब हम इजीली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान में, या इसको एक शांति से या इसको सोच विचार करके हम उस पे एक्ट कर सकते हैं तभी जब आपके पास एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लान होता है. जब आप रैंडमली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट देते हैं बिफोर जस्ट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ होमवर्क, तो फिर इस तरीके से वोलेटिलिटी अगर आई, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे हुआ, तो जैसे मैंने कहा हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है, right? So taking blind risk and taking calculated risk is the base of your peace of mind, जो या आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ये मूल मंत्र है. सो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जब मुझे पता है कि मैंने मेरे 100 रुपए है जो मैंने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाए हुए हैं और उसमें से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अगर समझो मैंने 40 रुपए जो है वो शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं. व्हेन आई नो दैट आई नीड दिस मनी बैक से आफ्टर 10 to 15 or 20 years, right? So I should not be worried about this volatility which is happening right now, right? डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में अगर पूरा लाल रंग हो तो बुरा तो लगता है, लेकिन एक जो मेरा माइंड है वो मुझे कह रहा है कि जो आपके 60 रुपीज है, राइट, विच इज यू बिन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एसेट क्लास, राइट. जैसे शॉर्ट टर्म के लिए समझो 40 रुपीज है एंड 20 रुपीज मिड टर्म के लिए है, और वो मैंने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाए हैं जिसमें प्रिडोमिनेंटली कर समझो मेरी डेट एसेट क्लास है और हाइब्रिड एसेट क्लास है, गोल्ड जैसा ये. तो उस तरीके से रिटर्न जो है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न को ये चीजें सपोर्ट कर रही है. सो 40 के रुपीस के लिए मुझे चिंता होना और पूरे पूरे 100 रुपीस के लिए मुझे चिंता होना, तो जिसलिए मैंने कहा इंटेंसिटी आपकी चेंज होती है. एंड आई नो दैट आई हैव टेकन द कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सो आई रियली डोंट नीड दिस मनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो इस तरीके से अगर आप प्लान करके इन्वेस्टमेंट जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसको चूज करेंगे, तो फिर आपको ये चिंता जो होती है वो आपको कम होगी. दूसरी चीज,
अगर आपने समझ के इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आपने समझा है कि विच प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, एंड व्हेन यू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट योर इक्विटी पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच, देन आपकी चिंता थोड़ी कम होगी। कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच मतलब क्या हुआ कि कोर जो मेरा है, मतलब समझो 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एसेट क्लास इज बेसिकली आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड, or I'm investing in large cap, purely large cap, right? So be it a direct investment in equity or be it a investment done with the mutual funds, right? So if that 50% is in large cap, then 20% or 30% in the flexi cap, and this then the rest 20% I'm going with mid cap. तो आपको आपका ये जो पोर्टफोलियो जो है वो भी आपका ज्यादा ब्लीड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो बहुत बार जब मार्केट नीचे जाता है तो सबसे ज्यादा हिट मिड एंड स्मॉल कैप्स होते हैं, राइट? और रिकवरी के टाइम पे भी सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ना जल्दी स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैंने मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच से किया होगा तो वरी भी मुझे कम होगा। सो डोंट ओनली थिंक कि मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा। रिटर्न मिलने से पहले पहले आपको देखना है कि वेदर आई हैव मैनेज्ड माय रिस्क वेल इन माय पोर्टफोलियो एंड आई नो कि वेयर आई एम इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच रिस्क आई एम टेकिंग। तो ये पेन आपको कम होगा। अंडरस्टूड मैम। अगर आप वेल डिफाइंड अप्रोच के तहत इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इफ यू इन्वेस्ट प्रॉपरली by planning, then it will not be a problem. Then the second bigger question here, ma'am, is that for all those young people who are there in their 20s and 30s, uh, a lot of them are now being maybe घर से pressure है, maybe ऐसे ही India really works. People want that young people should now start to buy a house so that एक hard asset है उनके पास, ये mentality चलती हुई आ रही है. So if I am a 20-30 year old and contemplating कि अगर मुझे घर बाय करना है या फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो इसको हाउ डू आई अप्रोच दिस? एंड ये यंग लोग जो 30, 30, 31, 32, 33 जो अपनी लाइफ अभी शुरू कर रहे हैं मैरिज के बाद, वो इसको कैसे अप्रोच करे, इफ यू कैन गाइड? यस डेफिनेटली। हमारे सोसाइटी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो होती है इसको टू टाइप में डिवाइड होते हैं। एक है लिक्विड इन्वेस्टमेंट और एक जैसे आपने कहा फिजिकल एसेट्स, और एक है लिक्विड एसेट्स, राइट? तो हमें लिक्विड एसेट्स या ये कुछ दिखते नहीं है तो हमें फील ही नहीं होता कि मेरे पास कुछ एसेट्स बने हैं। जब तक हमारे पास रियल एसेट या फिजिकल एसेट्स नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ हाउस, लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी और गोल्ड, राइट? ये सब मुझे दिखता है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, छू सकती हूँ, तब मुझे लगता है कि यस आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर माई सेल्फ, राइट? बाकी तो सब मोह माया है, इस तरीके से हम इसको सोचते हैं। लेकिन देखिए, आप जैसे मैंने कहा घर लेना या खुद के यूज के लिए घर लेना, डेफिनेटली इट्स अ नेसेसिटी, राइट? लेकिन घर लेके रहेंगे नहीं अगर आपको उसमें यूज नहीं करना है कंजम्पशन के लिए, तो इतने जल्दी घर लेना या घर के लिए कमिट करना मैं ये वाइज डिसीजन नहीं मानूंगी। सी काइंडली अंडरस्टैंड, पहले की सोच बहुत अलग होती थी। पहले मतलब हमारे पेरेंट्स शायद एक जगह पे जॉब करना स्टार्ट कर दे तो वो पूरे रिटायरमेंट होने तक उसी जगह पे रहते थे या उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते थे, और मोस्ट प्रोबेबली वो कहते थे कि चलो अभी मैं पूरी जिंदगी यही बिताने वाला हूँ। बट दिस इज नॉट अ केस ओवर हियर, राइट? यहाँ पे तो हम बार बार जॉब चेंज करते हैं, सिटी चेंज करते हैं, करियर चेंज कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं लाइफ में, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, राइट? सो इफ अ यंग गाय एक्चुअली इस काइंड ऑफ baggage you are carrying, right? When you are committing with for the EMI, if you are committing a house to take care of it, right? तो बहुत बार हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, दूसरी हमें बर्डन होता है एक मेंटली कि अरे अगर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं तो ये कैसे मैनेज होगा, अगर मैं दूर रह रहा हूँ तो फिर हाउ टू मैनेज दैट हाउस, उसको रेंटल पे देना या उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ, आई ऑलवेज थिंक कि जो आप यंग हो समझो तो ये बैगेज मत कैरी कीजिए, राइट? यू हैव टू गिव विंग्स टू इट। तो जितना आप फ्री रहोगे सभी चीज पे, उतना आप
मूवमेंट आपको इजी कर पाएंगे, आप जहाँ जाना चाहते हो वहां जा पाओगे. सो इट्स काइंड ऑफ जस्ट टेक योर बैग एंड मूव, राइट. तो इस तरीके से. और अभी आप देखेंगे तो रेंटल भी इतना इजी हमें मिलता है, जहां भी आप जाओ जस्ट आप बैग पैक करो और जाओ. तो घर लेने की सच में जरूरत नहीं है. So there is a mentality change happening and we actually should tell this to our parents. So definitely family pressure होता है, लेकिन फैमिली को अगर ये आप प्रॉपरली समझाएंगे, तो अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट इनिशियली कमिट कर देंगे आपके ईएमआई के लिए, तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट्स बनाने के लिए रूम नहीं रह जाएगी, राइट. सो एक्चुअली एक थंब रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि आपकी सैलरी जो है, इन हैंड सैलरी, उसे किस तरीके से खर्चा करना चाहिए, किस तरीके से आप इसको देखना चाहिए. सो इट शुड बी 1/3 you are actually spending on your expenses, 1/3 you are committing as a EMI, including all EMIs, right? Okay, and 1/3 at least you should do it for your long term investment, right? So you should see that how much percentage, or how much a percentage of the EMIs which are committing, and whether it is really necessary to do so. I don't think it is necessary to do so in early age, राइट. आप पहले एक फाइनेंशियल बेस बना लीजिए एसेट का, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ, जब आपको एक जगह पे रहना है, बिकॉज एंजॉय दैट प्रॉपर्टी, राइट. यू आर गिविंग सो मच, और यू आर blocking so much of amount, then make sure that you are enjoying that property. It's for consumption purpose rather than just giving it on rent. Understood, ma'am. So then let's come on to the final asset class that is there. अब gold है. So a lot of Indians do invest in physical gold and lockers में पड़ा रहता है वो. So there are better options that have come up now to invest in gold. For example, जैसे कि आपने भी अभी बोला था कि sovereign gold bonds, right? थोड़ा सा हमें बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी तरीके क्या है, जो कि हो सकता है मे बी बेटर देन होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड हो. तो उसके Yes, बारे में थोड़ा बताइए. yeah, definitely. See, physical gold is preferred by Indian families as a secure or stable investment, right? And we may think that it is a highly liquid asset class. Gold can be considered as hedge against inflation, which is actually true. It also provides as an option of asset class for diversification within the portfolio of different assets, being directly or indirectly correlated with other asset classes. What do you mean by indirectly or directly correlated? That आपने देखा होगा कि it is the gold is inversely related with equity, right? So whenever there is a crash happening in equity market, normally gold होता है, उसमें पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है. राइट नाउ अभी तो डेफिनेटली डेट इज द या बॉन्ड्स प्रेफरेबल है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ा है. लेकिन अगर आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी इंटरनेशनल टेंशन होता है, या इंटरनेशनल स्लो डाउन, या इंटरनेशनल में कुछ वरी होती है, तो पैसा लोग गोल्ड में मूव करते हैं, राइट. तो हमारे मतलब पेरेंट्स के टाइम पे, जैसे मैंने कहा, रियल एस्टेट एंड गोल्ड, ये दो ही बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे, राइट. एंड वी आर यूज्ड टू एक्चुअली बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज, कॉइन्स एंड बार्स, जिसको हम गोल्ड इंस्ट्रूमेंट वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखते थे. लेकिन काइंडली अंडरस्टैंड, as I said, when we buy a physical asset, we most of the times get emotionally attached with that property. So if my mom gives me some necklace or some earrings, right, so I hardly sell it, right, because I am attached with that emotionally, right. So gold jewelry, I never ever use or consider it as a investment, अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ी इमरजेंसी मेरे पे नहीं आ गई हो, राइट. तो तब तक मैं इसको आई विल जस्ट कंज्यूम इट, और आई विल पास ऑन टू माय नेक्स्ट जनरेशन. सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके से गोल्ड को देखना है, तो उसको फिजिकली बाय मत कीजिए, क्योंकि इवन इफ मैंने गोल्ड बार या कॉइन्स लिया, तो आप देखो, आप ज्वेलर के पास जाओ, उसको कहो कि इसको मुझे एनकैश करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है एनकैश करना. वो आपको बोल देंगे कि अरे मैडम, इसके, या सर आप वाइफ के साथ गए तो ये तो पक्का डायलॉग है कि अरे आप इनके लिए नेकलेस क्यों नहीं लेते, आप
इयररिंग्स क्यों नहीं ले लेते, देखिए नई डिजाइन आई है। सो मोस्टली हम आपके वाइफ या आपके बेटी के सामने तो ना नहीं कह पाते हैं, राइट? तो डेफिनेटली गोल्ड को गोल्ड में ही कन्वर्ट किया जाता है और रॉन्गली ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको लेना है तो SGB इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज बीन ऑफर्ड एज अ सॉवरिन गारंटी। उसके बाद उस पे 2.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, हाफ ईयरली पे होता है 8 years तक। अगर आप इसको होल्ड किया तो you are getting the tax free return, you don't need to pay any taxes on that, right? If you want to sell in between, then after 5 years you can sell it in secondary market as well. Okay, and definitely it means if you are not getting back a gold, you will be getting the money itself. But if I am actually linking it with my kids marriage or any sort of thing, then I can buy gold, whichever is gold at that time. And see, kindly understand कि हम ज्वेलरी लेके रखते हैं हमारे डॉटर्स के, समझो शादी के लिए, तो बहुत बार उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, राइट? यू कांट से कि ये जो मैंने बनाया हुआ नेकलेस है वही मेरी बेटी पहनेगी आफ्टर 20 years। रियली नॉट, शी मे लाइक न्यू डिजाइन, शी मे लाइक डायमंड्स। तो एट दैट टाइम फिर आपको इसको जब बेचना पड़ता है तो मेकिंग चार्जेस आते हैं, उसमें से वो ये ब्ला ब्ला करके कुछ भी अमाउंट माइनस कर देते हैं। सो इट्स एक्चुअली लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस टाइम पे इक्वली एक अच्छी तरीके से अमाउंट बना के उसको गोल्ड ले सकते हैं। सो गोल्ड ETFs, गोल्ड बॉन्ड्स, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, एंड SGB फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस वे यू कैन टेक अ डाइवर्सिफिकेशन इन गोल्ड एसेट क्लास। ब्रिलियंट मैम, आपका 45 मिनट्स का जो सेशन है इसमें आपने बहुत डीप चीजें शेयर की है। फाइनली वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट, हमने ये फाइनेंशियल प्लान बना लिया, राइट? वी हैव डन आवर एसेट एलोकेशन और हमने डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट अगर कर दिया, तो मुझे बताइए ये कि अब इसका रिव्यू कितने टाइम होराइजन पे करना चाहिए, कितने कितने टाइम पे इसका रिव्यू करना चाहिए, एंड अगर कोर्स करेक्शन करना है तो कब कब करना चाहिए? सो ये थोड़ा बताइए। Yeah, it's very important. See, right, review of your portfolio is very necessary. लेकिन रिव्यू का मतलब ऐसे नहीं है कि मैं हर घंटा रिव्यू करूं, राइट? बहुत बार हमें ऐसी अभी आदत लगी है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन टिप ऑफ माय फिंगर्स, राइट? सो आई जस्ट कीप ऑन चेकिंग कि आज का क्या स्टेटस है, 1 घंटे के बाद क्या हुआ ये। सी, this is really not needed. When you have done your proper homework, when you have done your equity construction, right? So periodic review का मतलब है 6 मंथली या ईयरली, क्वार्टरली भी आप कर सकते हो। हर बार NAV चेक करना, हर बार शेयर की कीमत देखना, ये वो इतना एक्टिवली मैनेजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? सो रिव्यू करना मतलब रीबैलेंसिंग या हॉपिंग फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर बिल्कुल नहीं है। रिव्यू का मतलब क्या हुआ है, सबसे पहले समझो फाइनेंशियल प्लान आपने किसी एक्सपर्ट से बना लिया तो पहले रिव्यू मीटिंग में वो क्या देखता है, या मैं मेरे क्लाइंट के पहले रिव्यू मीटिंग में क्या देखती हूँ कि वेदर यू हैव carried out all the suggestions which have been suggested in the financial plan, right? तो उस टाइम पे रिव्यू मतलब जस्ट ये है कि टिक मार्क है कि मैंने सब चीजें कर ली है या नहीं। तो अगर आप खुद कर रहे हो तो जो आपने सोचा हुआ था वो सब चीजें हुई है कि नहीं, ये पहले आप देखिएगा, राइट? तो जैसे इंश्योरेंसेस डन है कि नहीं, इमरजेंसी फंड निकाल के रखा है कि नहीं, वेदर आई हैव स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एज पर द फाइनेंशियल गोल्स एंड टर्म टू दैट गोल, एसेट एलोकेशन प्रॉपरली किया है कि नहीं, ये सब चीजें पहले टिक मार्क करो। सो दैट विल कम एज इन द रिव्यू प्रोसेस, राइट? फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स या बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है। Kindly understand, each asset class is meant for different time horizon, right? So if I'm investing for equity, if I have selected that particular mutual fund or समझो अपने स्टॉक लिया है सब तरीके से स्टडी करने के बाद, एंड सडनली अगर मार्केट डाउन होने के वजह से द रिटर्न इज नॉट अप टू द मार्क, राइट? सो काइंडली डोंट टेक अ कॉल
to jump out of it suddenly, right? Kindly understand that whether the reduction in return is due to volatility right now in the market, or there is a change in the philosophy of that particular mutual fund, or any bad news happening to that particular stock, right? And if there is a change in my goals which I have planned earlier. If there is no change as such, right, there is no change in fund manager style, no change in fund philosophy, no change in my personal life or personal kind of financial plan which I have done, no changes in government regulation. तो ये volatility अगर है और if it is sustainable you can take a, it means अगर इसको आप volatility को digest कर रहे हो तो don't take a call to jump from here and there, right? लेकिन definitely रिव्यू से फायदा क्या होता है कि अगर आप एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहे तो बहुत बार हमने लिया हुआ फंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा हो एंड यू जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट, या शेयर में जैसे मैंने कहा कि एक कुछ बैड न्यूज आई, फंडामेंटली दैट शेयर इज नॉट अप टू द मार्क, राइट? देन यू हैव टू डेफिनेटली टेक अ कॉल ऑन दैट. सो पीरियोडिक रिव्यू का मतलब है कि सब चेक कीजिए दैट इज गोइंग एज पर द प्लान, or if we really need to make any changes, but that changes needs to be only done if there is a major change happening जो आपने assumption किया था उस तरीके से नहीं है हुआ तो. Okay, understood. मैम, it was मैंने सोचा था हम लोग 30-35 मिनट्स में डिस्कशन कर लेंगे, बट आपके इनसाइट इतने ब्यूटीफुल थे कि बहुत ही मजा आया. For 45 minutes, we have learned a lot about financial planning, and I, being a financial planner, have learned a lot from the insights that you have given us. So firstly, thank you for sharing all these brilliant insights for us. And now I will open up the floor for question and answers. Anybody who has any question can request themselves as a speaker, and I will unmute them and help them ask a question. Right? Anybody who wants to ask a question can request themselves as a speaker. Hi Ayushi, I have approved you as a speaker. Please go ahead. You can unmute yourself. Okay, sir. So first of all, good evening, sir, and good evening, ma'am. So, ma'am, I just want to ask that, like, me and my sister in my 20s. So, जो मेरी sister है, she also wants to invest. And as I also mentioned in my tweet कि उसने 10 to 15,000 उसने अपनी savings से अपने save किए हैं कि उनको invest किया जाए. I have some knowledge about कि कहाँ करना चाहिए, because मैंने उसके बारे में थोड़ा study भी किया है. तो आप क्या यहाँ पे suggest करेगी कि if you have this much of amount in this age, because अभी हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमें कहाँ उनको initially अभी invest करना चाहिए? जी, डेफिनेटली. पहले आप ये देखिएगा कि ये पैसे की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, राइट? जैसे आपने कहा कि आप पढ़ रही है, हाँ राइट? जी. तो वेदर आपको ये शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए होंगे मेबी आगे पढ़ने के लिए, या कुछ स्मॉल स्किल अपग्रेड करने के लिए, राइट? जी. या इस पैसे को आप लॉन्ग टर्म लगा सकते हो और इसको ग्रो होने के लिए छोड़ सकते हो. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब पैसे मुझे वापस चाहिए, ये एक बार आपको डिसाइड करना ज़रूरी होगा. बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे पैसे नहीं लगेगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देती हूँ, और फिर अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए कभी भी ऐसे लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी उसमें से 20 to 25% आपको निकाल के रखना चाहिए, राइट? अदरवाइज़ फिर आपको पेरेंट्स को माँगना पड़ेगा या किसी और को माँगना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि कितना भी हम चाहे, जैसे मैंने कहा इमरजेंसी प्लानिंग ईच स्टेज पे ज़रूरी है. तो आप डेफिनिटली उसमें से 25% जो है वो आप लिक्विड फंड में रखिएगा. देखिए अगर कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको आप निकाल पाएँ. और जो लॉन्ग टर्म है तो इफ एज़ यू आर वेरी नेव इन दैट, राइट, इन इन्वेस्टिंग, सो आई विल डेफिनिटली सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिएगा, राइट? दिस इज़ अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, और ये आपको स्लोली आप इसमें पैसे डाल के रखिएगा. अगर आपको लग रहा है तो स्टैगर्ड वे में थोड़ा-थोड़ा डाल के रखिए, और इसको लंबे अवधि के लिए रखिएगा. और फिर उस तरीके से फिर आप
इस इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Kunal, you can go ahead and ask your question. Kunal, you can unmute yourself and go ahead and ask your question, please. Hello, sir. Hi. Namaste, everyone. Sir, my question is, sir, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में आई एम फ्रॉम 4 years, 2019 में आया था मैं. तो सर इसमें मैं ट्रेड करते हुए इतना टाइम हो गया. आई स्टार्टेड फ्रॉम कैश मार्केट, नाउ आई एम ट्रेडिंग इन एफएनओज. तो सर जितना मेरे पास मार्जिन होता है या ट्रेड करने के लिए होता है, समटाइम्स जैसे लूजिंग ट्रेड होता है या विनिंग ट्रेड होता है, मैंने जो पोर्टफोलियो होता है उसको सेल करके भी उसमें डाल देता हूँ मैं ट्रेडिंग में. हाँ, तो आपका सवाल क्या है? तो मेरा सर सवाल ये है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाता सर मेरे से. जैसे कई बारी सारा मेरा पोर्टफोलियो, चाहे मेरा 5 लाख का बना होता है, 6 लाख का बना होता है, उसमें भी जैसे चाहे उसमें 10% प्रॉफिट हो रहा होता है, 20% माइनस भी हो रहा होता है, मैं अपनी ट्रेड में कई बारी डाल देता हूँ जैसे उसमें सर. इसके लिए तो सेल्फ कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा, राइट? तो ये बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने कहा कि सेग्रीगेशन ऑफ मनी आप किसके लिए यूज कर रहे हो, ये आपको क्लैरिटी होना दिमाग में बहुत जरूरी है. या अदरवाइज आपको इसको पेन डाउन करके रखिए, राइट? जैसे समझो मेरे पास 100 रुपए है. सबसे पहले मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है, ये पहले आप देख लो. समझो मुझे उसमें से सिर्फ 80 रुपए की जरूरत है, तो 80 रुपए में से थोड़ा पैसा मैं इमरजेंसी फंड के लिए निकाल के रखूंगी, बाकी मैं फाइनेंशियल गोल्स के लिए निकाल के रखूंगी. और ये जो पैसा है इसको मैं किसी भी चीज के लिए छूंगी नहीं, राइट? एनी फॉर एनी एस्पिरेशंस, एनी एक्सपेंसेस के लिए. और फिर आपके पास बाकी पैसे अगर बचे हैं, तो आप जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसको सेपरेट रखो, दोनों पोर्टफोलियो को सेपरेट रखो. बिल्कुल भी आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को आपको हेज नहीं करना है. अदरवाइज जैसे आप 10% कमाने के लिए आप अगर आपका पूरा पैसे स्टेक पे लगा दे, एक बार हम जीतते हैं या एक बार हमें पॉजिटिव इसका मिलता है समझो रिजल्ट, तो बार बार ये होगा ऐसा हमारा दिल कहता है. एंड वी जस्ट कीप ऑन गेटिंग ग्रीडी एंड हम वो करते रहते हैं. सो सेग्रीगेशन ऑफ योर फंड्स एट अ कोर लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस मैम. मतलब मैम मैं एलोकेशन ऐसे करके रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में. 60% मेरा पोर्टफोलियो होता है और 40% से मैं ट्रेड करता हूँ. मैं हफ्ते में मैम स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, और कोई ना कोई मैम ऐसे मंथ में 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि ट्रेड लिया होता है, तो फिर मेरे को ये वाले सेल करके एक और ट्रेड लेना पड़ता है अपने उसको ट्रेड को बचाने के लिए. तो उसमें भी मेरा मैम कई बारी प्रॉफिट हो जाता है, कई बारी लॉस हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे मैंने 2 बारी अपना होल पोर्टफोलियो लॉस किया. मैं आपको एक बात बताऊं. मैं आपको जी एक सर. बात बताऊं. सिंपल बात करो. जो आपका लॉन्ग टर्म मनी है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो. और जो कि शॉर्ट टर्म मनी है उसमें ट्रेडिंग करो. अगर ट्रेडिंग में आपकी लॉस हो गई तो वो पैसे आपके चले गए. अब आप कुछ नहीं कर सकते ट्रेडिंग में. लॉन्ग टर्म मनी को आप नहीं छेड़ सकते हो. अगर आप इस तरीके से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आप कहीं रीच कर पाओ. बट अगर आप लॉसेस बना रहे हो और अगर वो लॉसेस को लॉन्ग टर्म मनी से सब्सिडाइज कर रहे हो तो वो गलत बात है. और अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो और प्रॉफिट्स कमाते कमाते आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और भी पैसे डाल दूं और लॉन्ग टर्म के पैसे आप निकाल के और ट्रेडिंग में लगा रहे हो, तो वो गलत बात है. जैसे कि प्रीति मैम ने भी अभी करेक्टली कहा, अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एफएनओ की हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पे एफएनओ किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए. यू हैव टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स वेयर द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल प्लानर इज वेरी बिलीवेबल एंड वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स क्या मिलेंगे. एफएनओ एक ट्रेड है जहाँ पे अगर कोई सक्सेसफुल हो तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, और अगर वो ना हो तो वो पैसे लूज भी कर सकता है. सो हमारा ब्रॉड पॉइंट ये नहीं है कि एफएनओ में आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करो. हमारा ब्रॉड पॉइंट ये है, आप थोड़ा सा कैपिटल लो. अगर वो कैपिटल में आप सरवाइव कर सकते हो तो अच्छी बात है, वहीं पे ट्रेड करते रहो. अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज बाहर निकल जाओ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या कैश मार्केट में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है वो करो. ओके सर.
Thank you so much. Are you serious? Can you ask your question, please? Hello, Aditya. Hello, Preeti. So my question is about the satellite portion of the portfolio. I want to ask what is the right percentage of our total portfolio we should keep in the satellite portion, and what are the components where we can actually invest in that satellite portion of the portfolio. Thank you. यस सी सैटेलाइट पोर्शन जो है उसमें भी आप कितना एलोकेशन कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड एज आई सेड set term to that goal. Okay, so it's always should be only linked with your long term goals, right? So satellite approach can differ with a buyer risk taking ability. So if a person is very aggressive, then he can think of adding some small caps, right, as well in the satellite portion of the investment. Otherwise I think that mid cap is what the maximum one can have, जिसमें आपको थोड़ा peace of mind भी मिलेगा, राइट? तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके पास है टू एक्चुअली डाइजेस्ट दैट वोलेटिलिटी, देन यू कैन थिंक ऑफ पोर्टफोलियो। टोटल पोर्टफोलियो जब हम सोचते हैं तो उसमें भी जैसे मैंने कहा कि टोटल पोर्टफोलियो में देयर इज एन नंबर ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स यू आर हैविंग एंड एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोकेशन। सो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से आपका सैटेलाइट में शुड नॉट बी मोर देन 20%. This is the maximum cap actually you should have in a satellite approach. Okay, so that way peacefully आप इसको बहुत सालों तक चला सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा वोलेटिलिटी से बहुत बार हम डीमोलराइज हो जाते हैं और हम बहुत रॉन्ग वेट के टाइम पे उस तरीके से रिस्कियर जो फंड्स है या रिस्कियर एसेट क्लासेस है उसमें से बाहर निकलते हैं एंड लॉसेस हो जाते हैं फिर हमें। Thank you, ma'am. Yeah. We cannot hear you, Yash. Hello. Yeah, we can hear you now. Good evening, sir. Good evening. My question is to Preeti ma'am regarding owning a residential house property. So as you rightly said, it in India it is a kind of emotional attachment with the house, but seeing with the financial perspective, for a person of age 25, as I am of 23 now, in 2 years I'll start earning. So should I commit my part of income to EMI to own a house, or should I build assets, and in a later period of my life shall I go for the purchase of a house, ma'am? आपके एज को देखते हुए तो मैं डेफिनेटली कहूंगी तो यू शुड हैव अ फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, क्योंकि मैंने स्पेस पे जब क्वेश्चन आया था तभी भी कहा कि यू हैव टू डिसाइड, राइट, कि अगर आप चाहते हो कि आपको पता है कि जहाँ पे आप हो या आप जहाँ पे आप जॉब करोगे उसमें कम से कम 10 से 15 साल में रहने वाला हूँ और फॉर कंजम्पशन पर्पस आई रियली वांट टू हैव अ हाउस, फिर जैसे मैंने कहा 1/3 तक ही आपके टोटल इनकम या आपके इन हैंड सैलरी का आपको रखना चाहिए, राइट? उसके बाद लेकिन एट द एज ऑफ 23 और 25 एंड नेवर एवर सी कि खुद के घर के लिए भी, क्योंकि सी वी कांट हैव अ लॉन्ग व्यू बिकॉज आगे जाके क्या होगा इसका एंटिसिपेशन आप बहुत इजीली नहीं कर सकते, राइट? तो इतने जल्दी घर लेना जस्ट फॉर सेक, और एक बार मैं आपको बता दूं कि बहुत बार रियल एस्टेट में भी प्रेफरेंसेस हमारे चेंज होते रहते हैं, राइट? अगर आज आप जो घर ले रहे हो 10 साल के बाद आपको लगेगा कि अरे मैं पुराने घर में रह रहा हूँ, राइट, मुझे ये घर बेचना है, तो घर बेच के देखिएगा, राइट? हम हमेशा कहते हैं कि घर को लेना कभी कभी इजी हो जाता है, घर को बेचना बहुत मुश्किल होता है। सो व्हेन यू रियली वांट टू यूज इट फॉर सेल्फ पर्पस एंड यू हैव दैट विजन कि यस अभी मैं इसमें रहना चाहता हूँ, तभी आप घर लीजिए। अदरवाइज आप
ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखिएगा जहाँ पे जब भी आपको चाहे तो क्विकली आप डाउन पेमेंट दे सकते हो या पूरा का पूरा फंड कर सकते हो हाउस. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि फर्स्ट यू हैव योर फाइनेंशियल एसेट्स डन एंड देन यू कैन थिंक ऑफ ओनिंग योर हाउस. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. BDW, I must say this that Preeti ma'am has a lot of experience and इनके tweets जो होते हैं वो बहुत brilliant होते हैं as a financial planner. ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं लोगों को. So please whatever she is trying to say कुछ ना कुछ आप please inculcate कीजिएगा because बहुत helpful होगा ये आप सब लोगों को. Okay, now Suhas, you can go ahead and ask your question. Hello, sir. Hi, ma'am. So I wanted to ask about the asset allocation part of the financial plan, right? So what I observe is there are quite a few products offered in the recent past which offer a dynamic asset allocation and which claim to have, provide a better risk-adjusted returns over the time. And because all of these are, newly launched, so most of their results are back-tested, right? So if one wants to follow such strategy to earn a better risk-adjusted return, right? So falling less in the bad market and having less volatility in the portfolio, right? So how much? So first, I would like to hear your opinion on this and your thoughts on this, and how credible is such backtest results is what I wanted to ask. Yes. सबसे पहले एक मैं बेसिक थंब रूल सबको बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट राइट आप वही यूज कीजिए या उसी में स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट जो आपको समझता है. राइट देखिए सबसे पहले मार्केट में बहुत सारे फैंसी नेम से नए नए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं. जब हम उसको रैपर जैसे कहते हैं ना कि बाहर का रैपर अलग होता है लेकिन उसके अंदर एक्चुअली देखा हुआ तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स सभी सेम होते हैं. सो रिस्क एडजस्टेड या कुछ अल्ट्रा काइंड ऑफ इंडेक्स फंड में भी बहुत अलग अलग तरीके से नाम से लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं. अगर आप बेसिक चीज उसके अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है तो उसमें जाके इन्वेस्ट करना मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लो. पहले देख लो कि वेदर आई एम फुल्ली अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोडक्ट और नॉट प्रोज एंड कॉन्स और तभी इसमें जाके इन्वेस्ट करना. रिस्क जो एसेट एलोकेशन जो होता है ना वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही करना बहुत जरूरी है. यू रियली डोंट नीड सच हाइब्रिड और सच मिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट is taking care of asset allocation on their own, right? Because they may say that we are doing it on our own, right? But we really don't have a control on what kind of it means वो क्या किस तरीके से asset allocation कर रहे उस time पे. We really have to give 100% to their expertise or their kind of chances. ये chance लेने जैसा होता है. So at the time of पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अगर आपने एसेट एलोकेशन कर लिया है तो गोइंग फॉर अ प्योर डेट प्योर इक्विटी एसेट क्लास इसमें डरने की बात नहीं. राइट सो दैट्स व्हाई मैं अगर सिंपल इंडेक्स फंड में मैं 100% प्योर इक्विटी फंड में पैसे लगा रही हूँ तो मुझे पता है कि पहले निफ्टी में समझो अगर मैंने इंडेक्स फंड लिया तो पहले 50 स्टॉक में ये मार्केट कैपिंग के हिसाब से पैसे डालेगा ये म्यूचुअल फंड और इस तरीके से मुझे रिटर्न मिलेगा. दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड थिंग. राइट I may not go with a product in that category which is actually taking a call on different type of asset allocation based on the market situation, right? So I may not actually favor such kind of products. So asset allocation at the time of portfolio construction ही कर लीजिएगा. दूसरा बैक टेस्टिंग डेफिनेटली ये हेल्पफुल होता है. राइट क्योंकि एक बात समझ लीजिए हम हमेशा सब पास्ट परफॉर्मेंस पे ही हम सब जो है वो ज्ञान बांटते रहते हैं. राइट आगे जाके क्या होगा कोई नहीं बता सकता. बहुत बार हमने ट्वीट्स देखे हैं कि 25 साल अगर ये होल्ड करता तो इतने पैसे बनते, ये शेयर इसके जगह पे मतलब कोई भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता उसके शेयर लेता तो इतना ये होता. लेकिन डेफिनेटली ये भी बात करना बहुत ही मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट सो इजी. राइट उस टाइम पे अगर मुझे ये पैसे वो पैसा प्रोडक्ट को यूज करने के लिए चाहिए था तो मैंने कर लिया.
वो पैसा में अगर डालता और फिर कितना होता, ये सब देखना इट्स जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस आगे जाके वैसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली इट कैन गिव यू अ काइंड ऑफ ट्रेंड और काइंड ऑफ स्टडी करने के लिए ये बैक टेस्टिंग डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। लेकिन ड्यू डिलीजेंस से ही आप आगे जाके आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है उसको बनाना बहुत जरूरी होगा। So asset allocation at the time of if you do a portfolio construction, that would be better always. Thank you so much, ma'am, for the elaborate answer. Thank you. Sunil ji, you can ask your question, please. Hi, Sunil ji, we cannot hear you. Can you hear me now, Aditya? Yes, we can hear you. Yeah. Go ahead. So my question was related to the review part of the allocation of our portfolio. So sometimes we do end up making the mistake of buying a wrong bond or a wrong stock. And maybe, for example, in my case, I also got into LIC and eventually moved out of some of the policies. But considering this stock market is currently so volatile, so my question basically is like, at what point of time should we exit if we know that we have done a wrong investment? Should we wait for the market to recover and go to its high, or is it the right time when the other good bond is giving you high number of units to exit from the current wrong investment and move there? So your thoughts on this, ma'am? Yeah. See, when you identify that this investment is wrong, so that is the point or that is the time when you should come out of it. Okay, so kindly understand. अगर समझो मुझे कुछ लग गया है, right, and blood is coming, so will I wait for something to कि कोई कब मैं इसका इलाज करूँ या नहीं? Definitely तभी करूँगी, right? So if you understand that this is a wrong investment I have done, okay, and this is not as per my risk taking ability, this is not as per my financial goals, right, this is not as per, or if it has been missold to you and you got to know about it, kindly come out of it. Don't see that whether I am making some profit or whether I am being at the loss or not, because see, जो पेन होता है वो वन टाइम शॉर्ट में रहेगा तो बहुत आप इसको आगे जाके रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चलाते रहे जस्ट फॉर होप कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे जाके बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सो दैट प्रोबेबिलिटी पे आप बिल्कुल मत रहिएगा। अगर रॉन्ग डिसीजन हुआ है तो इसको तभी के तभी करेक्ट कीजिए। इफ यू हैव सम लॉसेस, बेयर इट, थिंक दैट कि ये एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए ये जो कॉस्ट है वो मैंने पे की है और आगे जाके ये गलती में फिर से नहीं दोहराने वाला हूँ, and I will be very very prudent at that time when I'm selecting any financial product, or if it has been missold, or if somebody trying to selling it in improper way, then I will be educating myself whether to go for it or not. Okay, so the right time to correct all your mistake is today itself, or the time when you realize it. Okay, thank you so much, ma'am. Another question, not directly related to investment, but this mis-selling which happens, right? Does something happen to these financial service agents or to these banks when they actually dupe the people by giving hopes and then completely mis-selling these financial instruments? Is any action generally taken, or they just go scot-free? एक्चुअली इसका तो भुगताना हमें ही पड़ता है। ओके, जो भी मिस्टेक किए हैं वो हमें ही भुगतना पड़ता है, राइट? सो If देयर I इज may नो, come in, या प्लीज। if I may come in, sir, Sunil ji, mis-selling is also generally also accompanied by misbuying. तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आप उसको यस बाय यस, कर रहे हो। हमारी भी गलती है, बट हाँ, मेरा जैसे फर्स्ट पॉइंट नहीं, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, नहीं मैं जी, आ रहा हूँ वहाँ पे। देखिए अब मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मिस सेलिंग करते हैं इस कंट्री के अंदर, बिल्कुल करते हैं। बट अगर आप ये रियलाइज करेंगे कि सेबी ने एक और फील्ड, एक और लाइन ऑफ एडवाइजरी बनाई है जिसे कहते हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और उस लाइन ऑफ एडवाइजरी के अंदर
कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रीति मैम है। प्रीति मैम कि अगर आप ट्वीट्स फॉलो करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे ट्वीट्स डालती है, बहुत सिंपल, बहुत सटल, जो कि आप रिलेट कर सकते हो, आपको रियल लाइफ में यूज भी आते हैं, राइट। वो एक फी ओनली एडवाइजर है जो कि अच्छा काम कर रही है, राइट। मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस जगा पाए लोगों के अंदर, ताकि लोग सही डिसीजंस लें और मिस सेलिंग से बचे। तो बुरे जो जो लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अगर हम बात करेंगे कि कौन से लोग अच्छी एडवाइस दे रहे हैं और उनको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ सालों में 10, 15, 20, 25, 30 सालों में मिस सेलिंग रुक सकती है, राइट। सो मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छे लोगों की बात ज्यादा कीजिए, बिकॉज बुरे लोग तो हर प्रोफेशन में होते ही है, राइट। Okay, let's look at the positives. Thank you, Aditya ma'am. Thank you, Preeti ma'am. Thank you. The last question for the day will be from Shubham. Shubham, go ahead. Shubham, you can unmute yourself. Hey, hi. Sorry, I just went away in my screen. I was listening passively. So I just have one question. Matlab, it's a very basic one. I just recently joined, but my question is, how do you identify the right financial advisor for you? I know you mentioned this SEBI RIA registered SEBI registered investment advisors, but in those also, how do you know that which one is right for me? Yes. See, the first point of contact is definitely for you would be a person who is having a SEBI registered investment advisor, who is having a license from SEBI, right? तो उसका नंबर जो होता है या वो है कि नहीं एक्चुअली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दैट यू कैन चेक by visiting a SEBI website, right? So each and every person who has been licensed or got license from SEBI, they are actually there on the SEBI. Details of that person is there on the SEBI website. Okay. Secondly, there are 2 or 3 types of model each SEBI RIA is offering, right? So some are called fee only financial planner, some are fee based financial planner, and their offering also differs, right? So fee only financial planner जो मैं हूँ उस तरीके से मैं काम करती हूँ, where actually I am giving a financial consultancy. So I'm into 100% advisory. Okay. And the execution needs to be done by the client. I charge a very basic fee, transparent fee. It's not related to AUM and all these things, right? And my offerings are simple. जैसे मैंने कहा, I don't actually do or give advice on active direct stocks, right? Some are those who are charging on AUM percentage, राइट, जिनको कहते हैं फी बेस्ड इन्वेस्टमेंट. वहाँ डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट बताया जाता है, बाकी चीजें सब बताई जाती है. तो बेसिकली एक्चुअली आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगी कि 2-3 तरीके से आप, जैसे मैंने कहा कि आप उस पर्सन की वेबसाइट जाके देखिए, वो जो ट्विटर पे या बाकी चीजों पे, सोशल मीडिया पे उनके किस तरीके से उनके थॉट्स वो बताते हैं, वेदर यू आर दैट वेवलेंथ इज मैचिंग और नॉट. तो आपको एक बेसिक तरीके का एक बैकग्राउंड मिल जाता है कि दिस इज हाउ अ पर्सन इज हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस और दिस इज व्हाट दे आर ऑफरिंग, राइट. फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं तो बहुत बार हमें पता चलता है कि whether the wavelength is matching, whether the person which is the services which he or she is offering, whether it is matching with my requirement or not. And then फिर आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिएगा, उनके वेबसाइट पे दी होगी, या लोगों के कुछ जो उन्होंने लिखा है उनके बारे में वो देखिएगा. एंड फिर देन यू कैन डिसाइड कि वेदर द सर्विसेज with that person is offering is matching with you or not. And then you can decide. इसमें अगर मैं एक चीज ऐड करूंगा, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ सेइंग व्हाट यू कैन डू एंड सेइंग व्हाट यू कैन नॉट डू, राइट. ये बहुत जरूरी है. जैसे कि मैं हूँ, जैसे प्रीति मैम तो सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजरी करती है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी एज वेल एज स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ. बट मैंने आज तक अपने क्लाइंट्स को कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा जो मैं डिलीवर नहीं कर सकता हूँ. और अगर कोई मोमेंटम क्लाइंट आता है जिसको कल रिटर्न चाहिए, तो मैं वो नहीं करता हूँ क्लाइंट्स के लिए.
मैं AUM लेने के लिए या मैं क्लाइंट का पैसा या क्लाइंट से फाइनेंशियल एडवाइजरी करने के लिए नहीं करता हूँ। अगर क्लाइंट सामने से आता है, बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ही मैं करता हूँ। तो ऑनेस्टी ऑफ द एडवाइजर, लॉयल्टी ऑफ द एडवाइजर, और एडवाइजर ने का पास परफॉर्मेंस और वो कैसे बैक कर रहा है अपने टॉक को, ये आपको बात करके समझ में आएगा। एक बार आप उनसे बात करेंगे, उनके सारे जैसे मैम ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह भी देखेंगे ट्रांसपेरेंटली, तो आपको समझ में आएगा। और देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मैं कभी प्रीति मैम से मिला नहीं हूँ, बट प्रीति मैम के ट्वीट्स देख के ही मुझे समझ में आ गया एक ही बारी में कि उनको समझ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। शी अंडरस्टैंड्स हाउ टू फाइनेंशियल प्लान। और इस पूरे स्पेस में भी आपको समझ में आया होगा कि हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान इज वेरी गुड, राइट? तो आपको उनके बारे में पढ़ के समझना है कि उनके थॉट्स कैसे क्लियर है या अनक्लियर है या मिसगाइड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, FNO आया तो हमने क्लियरली बोला कि लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में FNO के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, राइट? सो दैट्स हाउ यू फिगर इट आउट। So two more follow-up question I have here. Just one question addressing to Preeti ma'am, that is it mandatory that I do paid consultation only to begin with, or RIAs are open to having a free consultation also? And second question, what is your viewpoint about DIY investing in small cases? Like we have been hearing a lot that they confirm some fixed guarantee, but are they also mandated by certain RIA regulations, or are they independent? यस, फ्री कंसल्टेंसी तो हम करती है ना। हम ट्विटर पे लिखते हैं, लिंक्डइन पे लिखते हैं, मैं कोरा पे लिखती हूँ, मेरे वेबसाइट पे लिखती हूँ, तो दैट इज अ फ्री कंसल्टेंसी, राइट? सेबी आ रहा है, एज पर सेबी कोई भी बात अगर फ्री में दे रहा है तो दैट इज एक्चुअली नॉट कंसिडर अंडर द एडवाइस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? तो डेफिनेटली चार्जेबल होती है एडवाइस अगर आपको करनी है तो सम कैन गो विथ अवरली काइंड ऑफ एडवाइस एज वेल। तो लेकिन पेड एडवाइजेस एक्चुअली CBRI करते हैं अगर आपको डॉक्यूमेंटेड एडवाइस चाहिए। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, दैट इज कैन बी अ जेनरिक काइंड ऑफ एडवाइस वन कैन हैव, एंड फॉर दैट इज टोटली फ्री, राइट? सेकेंडली, यस, अंडरस्टूड। या सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि स्मॉल केस, और ये देखिए मैं फिर से कहती हूँ कि बंडल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, राइट, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके, यू कांट अंडरस्टैंड कि वेदर व्हाट काइंड ऑफ कॉल दे आर टेकिंग इनटू दैट, राइट? बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले आप कर लीजिए। जैसे आदित्य जी ने फर्स्ट क्वेश्चन कहा था कि लोग डायरेक्टली इक्विटी में जंप करते हैं। मैं तो कहती हूँ लोग डायरेक्टली FNO में जंप करना स्टार्ट देते, स्मॉल केस, FNO, डेरिवेटिव मार्केट, इंट्राडे, इनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता और वो जंप कर देते, राइट? पहले आप फाउंडेशन बनाइए। इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग, सी मैंडेटरी जो हमारे EPF है ना, इसको हम बहुत अंडररेटेड करते हैं, लेकिन वो आप सालों साल करते हैं और उसमें जो आपको पैसा बनता है, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बनाने सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, राइट? उतना रिस्क फ्री, राइट? तो इस तरीके से पहले यू हैव टू हैव अ बेसिक फ्रेमवर्क, एक अच्छा फाउंडेशन बना लिए, फिर देखिए। और स्मॉल केस से ही पैसा बनता है, PMS से ही पैसा बनता है, या मैं कुछ ट्रेड लूं, कुछ रिस्कियर करूं तभी पैसा बनेगा, ये सब मिथ है, राइट? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वाइज इन्वेस्टमेंट जो आप समझ पा रहे हो, राइट? बेसिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप उसको बहुत सालों तक कर रहे हो, तो उससे भी आपको पैसा बनेगा, राइट? और बाकी तो पैसा बनेगा मतलब आपके गोल्स गोल्स मैच हो रहे कि नहीं, राइट? अगर मेरे पैसे बन रहे हैं लेकिन जब मेरे गोल्स चले जाने के बाद, तो उस पैसे का भी क्या मतलब है, राइट? अगर आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाला कि आज मार्केट डाउन है तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, राइट, आज के तारीख में, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट का फायदा भी क्या? तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए और बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, देन यू मे थिंक ऑफ हैविंग गोइंग विद सच काइंड ऑफ बंडल प्रोडक्ट्स। गॉट इट। आदित्य, एक क्वेश्चन ट्विटर पे आया, कैन वी टेक इट? यस, प्लीज टेक इट। आपके पास है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एडवाइजर इज वेरी अंडररेटेड, पीपल लूज मनी इन मार्केट इन्वेस्टिंग, okay, in the market directly, but they are reluctant to go for advisor to get sound sleep and better return.
how you see this, how should people approach it, राइट सो एक्चुअली राइटली हमारे यहाँ पे हमारे सोसाइटी में सर्विसेज को बहुत अंडररेटेड किया गया है, राइट। हम चाहते हैं कि सर्विसेज हमें फ्री में मिले, लेकिन प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे पोर्टल्स है उसमें अभी सेल चालू हो गया है फेस्टिवल का। सो आईफोन धड़ाधड़ बिक रहे हैं, कोई भी गाड़ी आई समझो लॉन्च नहीं तो उसके लिए वेटिंग पे वेटिंग लोग पैसे डाल रहे। बट इफ दे वांट टू गो फॉर इवन अ इंटीरियर डिजाइनर or kind of yoga teacher or a financial planner like us, people think that the money which they may spend on it is actually not needed, right? So actually I have wrote a article on that, अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि what are the trigger points, right, that a person will have to go and actually hire a person कि फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है। काइंडली अंडरस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग व्हेन यू डू विथ अ consultant is way different than what you will do on your own. I'm not saying that you may find a मतलब एक एकदम अलग तरीके से आपको immediately पता चलेगा, लेकिन जो simplicity या जो clarity कोई भी expert आपके फाइनेंशियल प्लान में लेके आता है वो बहुत बार हम खुद जो करते हैं वो नहीं हो पाता। जैसे बेसिक चीज है, हम कभी कभी अटैच हो जाते हैं हमारे डिसीजन से, वी गेट इगोइस्टिक कि गलत भी हुआ है हमें पता है फिर भी हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं बिकॉज एक ईगो आड़ आ रहा है, राइट। अदरवाइज देयर इज अ फियर कि हम किसी से बात करें, किसी को मेरे फेल्यूर बताए तो मेरे फैमिली में लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इसके लिए हम हमारी गलतियां छुपाते हैं या उसको ठीक नहीं करते। बट व्हेन यू एक्चुअली गो विथ अ फाइनेंशियल प्लानर तो ना सिर्फ आपका फाइनेंशियल प्लान वो बनाता है बट यू रियली हैव अ डेडिकेटेड पर्सन टू टॉक और शेयर योर व्यूज, योर पेन्स, राइट। सो बहुत बार मुझे क्लाइंट से ऐसे फीडबैक आते हैं कि दे फाइंड मी एज अ फ्रेंड और अ मेंटर, जो उनके वो बहुत ऐसी चीजें हैं फाइनेंशियल मैटर जो उनके फैमिली से भी नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो ट्रूली वो मुझसे बात करते हैं और एक ऑनेस्ट व्यू उनको मिलता है। बिकॉज थर्ड पार्टी व्यू जो आपके इन्वेस्टमेंट से इमोशनली रिलेटेड नहीं है, ऐसा व्यू जो आपको देगा उसका फायदा बहुत बड़ा है, राइट। सो डेफिनेटली RI या जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है इनको पेनिट्रेट करने में मार्केट में टाइम लगेगा, बट थैंकफुल टू ऑल सच पीपल लाइक आदित्य जो इस तरीके से ये छोटा टॉक करते हैं, या सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो सच में अभी इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस। सो डेफिनेटली आप ये जो फीस है don't consider it as expense, right? Consider it as the kind of investment you are also doing for yourself, okay, which will definitely help to mitigate the loss of time, efforts and as well as money अगर गलती से कहीं पे आप रॉन्ग प्रोडक्ट पे फंस गए। सो फर्स्ट लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू डू बट इट इज अबाउट व्हाट नॉट टू डू, और वो आपको एक सिर्फ अच्छा फाइनेंशियल प्लानर ही बता पाएगा। The summary of this talk is beautifully given by Preeti ma'am कि financial planning एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी exercise है that all of us should be doing at the start of our investments. We have tried to put light on a lot of features of the financial plan. आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, प्रीति मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है. So I hope that all of us are able to inculcate some part of it into our lives. And as Preeti ma'am said, गलतियां मत कीजिए एंड कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ अगले 10, 15, 20 साल के अंदर, सो एक फाइनेंशियल प्लान मेक श्योर करेगा कि आपको कभी भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. Thank you Preeti ma'am for this wonderful session and these wonderful insights. अगर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप प्रीति मैम के साथ रीच कर सकते हैं, बहुत अच्छे है वो.
and she helps us and she guides us all the time about financial planning. So thank you, Preeti ma'am, and good night, and thank you to everybody for joining on this space. Thank you, Thank you Preeti so ma'am. You much. did It's wonderful. lovely. Yes, Thanks, it's lovely thanks a lot. talking to you all. Okay, Thanks, thanks a lot. Thanks thanks for a lot. this opportunity. Thanks, Have a ma'am. good night. Bye Thanks, bye. See you. thanks.